A very good morning, class. So today I'm going to present before you the SP board paper pattern, which is of 80 marks theory and 20 marks practical. Now, as you know, class, आपका board exam का timetable आ चुका है. So I request all of you to go online and check the timetable. So without wasting much time, we'll focus today on the board theory paper pattern, which you'll be following to write your board exams offline and not online. So let us start with HSC Maharashtra State Board 2020-21, the SP board paper pattern, which consists of 80 marks. Now, please listen to the video full till the end, because in this video, not only I'll be telling you all the paper pattern which is there, but also I will be giving you all the time in minutes. So total 3 hours ka paper hai, which you have to finish in 180 minutes. So how you will distribute this 180 minutes in order to complete your paper on time, without hustle and bustle, without any pressure, without any stress. Rather than completing one question, complete all the questions within the given time limit, and the time which you will be saving, how, kaise, I'll explain you all. Utilize that time to fill up all the things which you have left in your paper. Okay? So first I'm explaining you all kya questions rahenge in your question paper. And once I explain you all the paper pattern, after that, continuing in the same video, I'll explain how much minutes you have to distribute to each particular question. So question number 1, A, B, C, D is divided in 4 parts. ऐसे 4 हिस्सों में divide किया गया है, and all the 4 questions are of 5 marks each, and all are objective questions. So basically, out of 80, 20 marks is your objectives. Now, if you have seen your textbook, last year class 11th standard में जो paper pattern आपने follow किया, the same paper pattern has been there for this year as well, because this is the first year after portion change जो board exam होना चाहिए. पिछले साल change हुआ था in 11th, so this is your first year in comparison to the new portion जो आप देने वाले हो अभी. So ये जो 4-5 objectives के आएंगे या डाले जाएंगे, वो कुछ भी हो सकता है from A to J. तो A to J में आपने देखा होगा fill-ups है, with option, without option, match the column है, arrange the following है in order, odd man out है, complete the table, answer in one sentence, true or false. ठीक है ना? So it can be any 4 parts from all these 8 to 9 parts given behind your textbook. I request class, please don't rely only on the objectives behind the textbook. अच्छे से lesson पढ़ो, go through the entire chapter, और कहीं से भी question आए, then you should be able to write. So that is why class, I request you to listen to all the videos which I have put. I have tried to explain the concepts in simple term, so that आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी, and once you are clear with the concept, कौन से भी कोने से क्वेश्चन आ जाए, आप आंसर लिख सकते हैं. Coming to the next question, question number 2, explain the following concepts or terms. So there will be 6 questions given. Out of 6 you have to write any 4, और एक question रहेगा 2 mark का. So total 8 marks you have to write over here. Now here आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि minimum 2 points to the point exact लिखना है. पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एक के बाद एक नीचे अरेंज करके लिखना है, एंड मैक्सिमम 4 पॉइंट्स जा सकते हैं. ज्यादा बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं और यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. Coming to question number 3, study the following case study or problems and give your opinion. 3 केस स्टडी में से आपने कोई भी 2 लिखने हैं. 6 मार्क्स मतलब एक केस स्टडी 3 मार्क की. अगेन केस स्टडी में भी बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने नहीं है आपने. जो प्रॉपर रीजन रिक्वायर्ड होता है उसके सपोर्ट में यू हैव टू गिव. यस और नो एक वर्ड में भी आंसर नहीं लिखनी, यू हैव टू राइट द आंसर इन फुल सेंटेंसेस. तो वो बात का ध्यान रखिएगा.
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। 4 डिस्टिंग्विश दिए रहेंगे, उसमें से कोई भी 3 आपने लिखने हैं for 4 marks each, so that is 12 marks. Now here one doubt which most of the students ask me is, मैम अगर वो head points नहीं लिखा तो चलेगा क्या? बच्चे लोग एक चीज ध्यान रखना, you can remember the distinguish only by the head points, and जरूरी नहीं है जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही एग्जैक्ट यूज करे आप। मीनिंग अगर वही बताना चाह रहे हैं तो यू कैन मेक योर ओन हेड पॉइंट्स ऑल्सो फॉर दैट मैटर। बस ये देखिएगा कि आप मीनिंग ना चेंज करें। वन मोर थिंग, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टडी मैक्सिमम 6 पॉइंट्स इन डिस्टिंग्विश, बिकॉज फॉर 4 मार्क्स मिनिमम आप 5 पॉइंट लिखेंगे तो बेहतर होगा, बिकॉज अगर एक रॉन्ग भी हो गया तो आपका जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो बचा लेगा आपको। So one thing keep in mind, always start your distinguish with the first point, that is meaning, और उसके बाद next 4 should follow. So for 4 marks I request all of you to study 6 so that in exam at least 5 याद रहेंगे। 5 में से exact अच्छे से 4 आप लिख पाओगे, है ना? Correct? I hope you all also agree with me. Okay. So moving forward to the next question, question number 5, answer in brief. You have to write any 2 out of 3. एक क्वेश्चन 4 मार्क का, सो टोटल हो गए 8 मार्क। अगेन मिनिमम 4 पॉइंट लिखा पॉइंट वाइज तो भी बस है, या मैक्सिमम 6 पॉइंट एक्सप्लेन किया तो भी काफी है। क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 लिखने हैं आपने फॉर 4 मार्क्स ईच अगेन, सो टोटल हो गया 8 मार्क का। द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर ऑल्सो, minimum 4, maximum 6 to 7 points if you explain is more than enough. Coming to question number 7, very scoring, marks बिल्कुल नहीं जाने चाहिए यहाँ पे आपके। letter writing, 3 letters में से you have to attempt any 2 letter, 5 marks का एक letter है, so total 10 marks. In your text around 15 to 16 letters are given. एक चैप्टर में मेरे ख्याल 5 letters है, अगर क्वेश्चन 2 को मैं ए बी में डिवाइड करूं तो। सो आज से अगर आप एक दिन भी रोज एक लेटर प्रैक्टिस करें तो मेरे ख्याल बहुत होगा। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आपको 5th स्टैंडर्ड से सिखाया जा रहा है, मेरे ख्याल अभी आप 12वीं में आ गए हैं। सो फॉर्मेट इज द सेम, ऊपर हेडिंग, राइट साइड में डेट, लेफ्ट साइड में इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट, मेन बॉडी, थैंकिंग यू, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, सेक्रेटरी का साइन, एनक्लोजर। बेसिक लेआउट आप लोगों को पता होना चाहिए। हर दिन 10 से 15 मिनट निकाल के रोज एक लेटर राइटिंग में प्रैक्टिस करें, सो मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। एंड आराम से 20 मार्क ऑब्जेक्टिव और 10 मार्क लेटर, 30 मार्क आपके हाथों में है जो कहीं नहीं जा सकते अगर आप चाहे तो। सो प्लीज फॉलो द लिटिल बिट टिप्स व्हिच आई एम गिविंग यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग है, जिसमें 2 ब्रीफ क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 8 मार्क के लिए। सो यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। सो मैक्सिमम हर आंसर में 8 पॉइंट्स पढ़ के रखो, सो दैट उस हिसाब से आप हर आंसर में कट शॉर्ट करके लिख सकते हैं। अगर 10 पॉइंट्स पढ़ सके तो और भी अच्छा है। अगर ब्रीफ आंसर्स है, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंक्शंस का आंसर है, 10 पॉइंट पढ़ के रखो। 10 नहीं होते तो 8 तो पढ़ने ही है, वो दिमाग में फीड कर लो। सो ये रहा आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर पैटर्न। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चन के लिए आप अगर कितना मिनट दे तो काफी रहेगा या होना चाहिए। सो जैसे आपने देखा, इफ यू आर स्टार्टिंग योर पेपर विद ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज 20 मार्क्स के क्वेश्चन है और आपको पेपर 10 मिनट पहले दिया जाता है सिर्फ देखने के लिए। एग्जैक्ट 11 बजे वो आपको बोलेंगे टू स्टार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स सेक्शन। सो एग्जैक्ट एट 11 AM दे टेल यू टू स्टार्ट द पेपर। तो ये जो 10 मिनट है इसको अच्छे से यूटिलाइज करिएगा, पेपर अच्छे से गो थ्रू करे और सिलेक्ट करो कौन सा आंसर आपको सबसे बेस्ट आता है, सबसे अच्छे से आता है, सो दैट आपको पता लगे कि इतना टाइम मेरा इधर जाने वाला है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग योर पेपर विथ ऑब्जेक्टिव्स, सो क्वेश्चन 1 A B C D जो 20 मार्क का है, you all should take minimum 15 minutes का टाइम।
तो जैसे मान लो आप डॉट 11 बजे चालू कर रहे हो तो 11:15 कैसे भी आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने ही है। ज्यादा टाइम मत लेना ऑब्जेक्टिव्स के लिए। एक चीज ध्यान रखिए, व्हेन यू आर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स के डायरेक्ट आंसर्स मत लिखिएगा। प्लीज राइट द क्वेश्चन एंड अंडरलाइन द आंसर। काफी बार स्टूडेंट्स पूरा स्टेटमेंट लिख के भूल जाते कि अंडरलाइन भी करना है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अंडरलाइन द आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड डोंट राइट डायरेक्ट आंसर्स। सो 11:15 जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द टर्म्स। एक्सप्लेन द टर्म्स के लिए आपने लेने हैं 20 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट का टाइम। सो जितना उसमें अच्छे से आता है अच्छे से उसको अटेम्प्ट करें, नहीं आता है तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे ध्यान रखो, एक क्वेश्चन इसमें से अगर आपको आता है तो 5 मिनट से ज्यादा आपने नहीं लेने हैं 4 लिखने के लिए। ओके, तो एक आंसर 5 मिनट, 4 आंसर 20 मिनट। तो मान लो 11:15 से 11:35 तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 किसी भी कीमत पे खत्म हो जाना चाहिए। इनकेस नहीं होता, एक आध 2 मिनट और ऊपर ले लीजिए, बट 11:37 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने जाना ही है। नहीं होता, जगह छोड़ो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यू हर्ड मी राइट। नहीं आता, जगह छोड़ो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द केस स्टडी, जिसमें आपको 2 केस स्टडी लिखनी है। तो इसके लिए आपको लगना चाहिए सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट एक केस स्टडी को। सो मान लो 11:35 से 11:45, 11:45 डॉट आपने क्वेश्चन 3 कंप्लीट करना है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है 11:45 तक आपका 1 2 3 अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन में, जहां पे आपको 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखने हैं। तो उसके लिए आपको लगने चाहिए 20 मिनट। 11:45 से लेकर 12:05 तक, मैक्सिमम 12:10 तक, उससे ज्यादा नहीं, आपको डिस्टिंग्विश में टाइम नहीं लगाना है। फिर आप आएंगे आंसर इन ब्रीफ, जहां पे आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 में से 4 मार्क के। तो मेरे ख्याल आप यहाँ पे 20 से 25 मिनट ले सकते हैं, जैसे 12:05 से 12:30 तक आप वो कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई, जहां पे आपने नीड 2 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर भी मेरे ख्याल 25 से 30 मिनट, मैंने 35 लिखा है, अगर आप 5 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे तो यहाँ का 5 मिनट कम कर दीजिए। सेम आंसर इन ब्रीफ और जस्टिफाई के लिए 25-25 मिनट भी लिया तो भी काफी है। यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट 20 और 25 में खत्म करते हो तो यहाँ पे आप 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 25 का 35 तक मैक्स आपको खत्म करना ही है। तो मतलब आपका टारगेट रखिए 1:05 तक आप जस्टिफाई तक पहुंच जाने चाहिए, 1 बजे तक। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो 11:45 तक क्वेश्चन 3, वैसे ही 12:45-50 का टारगेट रखो, उसका आधा क्वेश्चन नंबर 6 तक आप पहुंच जानी चाहिए। सो यहाँ पे आप 25 मिनट भी लेंगे तो भी चलेगा, 10 मिनट अगर आप बचा पाए तो। फिर आप आओगे लेटर राइटिंग, जहां पे आपने 2 लेटर्स लिखने हैं बहुत अच्छे से। तो 20 मिनट का टाइम मेरे ख्याल यहाँ पे काफी होना चाहिए। तो अगर आप 1:05 तक क्वेश्चन 6 पे पहुंचते हो तो 1:05 से लेके 1:25 तक आपका लेटर राइटिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। फिर हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको एक ही बड़ा आंसर लिखना है 8 मार्क के लिए। तो उसके लिए 20 मिनट काफी होने चाहिए। तो अगर आप जस्टिफाई के 10 मिनट बचा लो तो आप वो 5-5 मिनट यहाँ पे बांट सकते हो। तो 25 लेटर के लिए, 25 8 के लिए। तो 1:25 से 1:45 या मैक्सिमम 1:50 तक आपका क्वेश्चन 8 खत्म करने का आपने टारगेट रखना है। कैसे भी करके 15 से 10 मिनट आपने बचाने हैं, वो क्यों मैं बताती हूँ। अगर आप टारगेट रखोगे 1:45 तक का, तो याद रखें बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट सिर्फ 150 तक प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको एंड तक सप्लीमेंट लेते नहीं बैठना है, बिकॉज उस पर होलोग्राफ चिपकाना होता है, डिटेल्स भरनी होती है, थ्रेड से बांधना होता है, बहुत काम होता है। सो बेसिकली क्लास
1:45 तक जितना सप्लीमेंट लेना है ले लो, उसके बाद कोई सप्लीमेंट मत मांगना, बिकॉज आपका फोकस होना चाहिए पहले तो आप सबसे पहले 1:45-50 को अपने सप्लीमेंट्स बांध लीजिए, उसके लिए 5 मिनट पकड़िए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला था, आपने सुना था पिछले क्वेश्चन में कि अगर टाइम लिमिट के ऊपर जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़े जगह छोड़ दे, तो आपको उन क्वेश्चंस पे वापस जाना है जो आपने छोड़ दिए हैं, और आपने एक बार पेपर देने से पहले चेक करना है कि आपने सारे क्वेश्चन नंबर्स बराबर लिखे हैं या नहीं। तो इन सब के लिए आपको वो 15 से 10 मिनट लगेंगे। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल, इस टाइम लिमिट के हिसाब से अगर आप प्लान करें, अब टाइमिंग में खाली एग्जाम्पल दिया है, कुछ लोग 7th क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कुछ को डिस्टिंग्विश बहुत अच्छे से आता है, तो इसीलिए मैंने मिनट्स भी लिखे हैं यहाँ पे। सो फॉर लेटर राइटिंग 20 मिनट आपने अलॉट करने हैं, फॉर आंसर इन ब्रीफ 20 से 25 मिनट अलॉट करने हैं, जस्टिफाई आंसर इन ब्रीफ 20 से 25 मिनट। तो हर 4 मार्क के आंसर के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका एसपी पेपर छूटना चाहिए या इनकम्प्लीट रहना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर अक्रॉस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चे लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऑनलाइन वीडियो लिंक्स मैंने डाले हैं, उनको अच्छे से सुनो, ट्रिक्स टिप्स फॉलो करो, तो कोई डाउट नहीं है कि आपका पेपर टफ जाएगा। और अगर कुछ भी डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe my channel. So I stop here for the day class. Thank you so very much for listening to me, and stay tuned, keep watching, take care and do start studying now, because 2 महीने रह गए हैं अभी, ये 2 महीनों का टाइम आपने बहुत अच्छे से तैयारी में लगाना है। Okay, so thank you so much class. I stop here for the day.